नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ ये हमारे एक बांग्लादेशी भाई हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मुस्तफ़ा। ओके, सो मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे, हैं तो बांग्लादेशी लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और किसी भी पाकिस्तानी से ज़्यादा ये पाकिस्तानी है। बिकॉज वेन एवर ही सीज मी इन द मस्जिद he will have a passion to talk to me regarding Pakistan issues. What's happening? What's going on? So he's always watching Pakistani programs. He loves Pakistan and loves Imran Khan. Imran Khan. Yeah, Imran So, Khan, yeah. and actually he was saying that reason for loving Pakistan is Imran Khan. Exactly, yeah. So, Imran, not only me, the entire Bangladeshi people loves Pakistani people, mainly, majorly, not because they are Muslim. Of course, alhamdulillah, all of them are Muslim, but they love Pakistani people because and only because of Imran Khan. that आज का हमारा जो टॉपिक है is mainly about what's happening in Bangladesh. There are many vlogs which I have listened. For example, I have मैंने ओरिया मकबूल जान को सुना, मैंने मोहित पीरजादा को, इमरान रियाज को, लेकिन उसके अंदर 3-4 पर्सपेक्टिव ऐसे थे, 3-4 इंसाइट ऐसी थी जो कि मिसिंग थी. That's why I engaged brother Mustafa and I asked him, I requested him to give us some time so that people of Pakistan can know what is missing otherwise, what information we are missing. Because जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसके अंदर खास तौर पे जब इमरान खान ने कहा कि आप जाएं और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें तो एवरीबडी वाज enthusiastic and started learning about Bangladesh. But we cannot learn Bangladesh ourselves without the help of a Bengali brother who is actually a Pakistani brother. You will see that. So, brother Mustafa, tell us what happened and why the students have, उन्होंने ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसका तो there are a lot of different reasons. One of the most important reasons is that a lot of university graduate Bangladeshi with highly talented and very good insight of education and knowledge and experience, whatever you can say, they are coming out of the university and just loitering, wandering around for years without any job. On the other hand, a lot of good government and the private sector jobs are occupied by the Indian nationals. There is a saying that यहाँ से 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में जाके काम कर रहे हैं. ओरिया मकबूल जान सर कह रहे हैं. और ये अमेरिका में जो है क्या कहते हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा उसने कहा, वो इमरान रियाज है पाकिस्तान उसने कहा, काफ़ी बंदे ने ये बोला जब बांग्लादेशी बंदे इंडिया में जाए वो क्या कर रहे हैं, वो सब लेबर है, वो डेली लेबर है. एक का दुक्का हो सकता है कोई चाय की दुकान क्या कपड़े की दुकान कर रहे हैं, बाकी सब डेली लेबर है. लेकिन इंडियन जो 25 लाख इंडियन जो बांग्लादेश में इज द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, 2.5 million Indians are working in Bangladesh. It's a conservative estimate. एक मिनट यहाँ मैं पास कर दूँ तो ऑडियंस के लिए ये है वो पर्सपेक्टिव नाजरीन जो मिसिंग था कि तकरीबन 25 लाख 2.5 मिलियन के करीब इंडियंस जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हैं. और कौन सी जॉब्स कर रहे हैं? ये सभी, कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर, कोई एंड काफी बंदे ये अपना बिजनेस ओन करते हैं. दे रन देयर ओन बिजनेस also, and they get cheap labor and they got a very cheap labor and entire money they are sending to Bangladesh. And one of the unconfirmed sources that they are not paying any tax to Bangladesh. So and also there is a report that India is making money, or the remittance, single country, if you take one single country, for example, let's say Saudi Arabia or Dubai or America or Canada or US, ये अगर सिंगल कोई कंट्री ले लें, सऊदी अरबिया के बाद इंडिया जो रेमिटेंस मिलते हैं उसको हाईएस्ट रेमिटेंस, सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस दे गॉट फ्रॉम बांग्लादेश. जस्ट इमेजिन हाउ मेनी इंडियंस आर वर्किंग इन बांग्लादेश and how many Bangladeshi people are working in India and sending remittances to Bangladesh. So, Mustafa bhai, let me just, for the sake of people, so पहला पॉइंट ये है कि इंडियंस जो हैं वो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं
तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब। और दूसरा पॉइंट जो मुस्तफा भाई बता रहे हैं वो ये कि जो तरसीलात इंडिया में आती हैं, बांग्लादेश से जाने वाली तरसीलात रिमिटेंसेस सेकेंड हाईएस्ट हैं अमंग ऑल द कंट्रीज फ्रॉम होल वर्ल्ड। जितने तरसीलात इंडिया को जा रही हैं, बांग्लादेश सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है। दिस इज व्हाट वो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में काम करने वाले इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया। प्लीज कंटिन्यू। नाउ यू कैन से ओके, ये 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में काम कर रहे हैं, उसका कितना रेमिटेंस बांग्लादेश में आ रहे हैं? ये तो सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस बांग्लादेश इंडिया में जा रहे हैं। उसको वहां से रेमिटेंस 1 पैसे भी नहीं आ रहा। वो बंदे लोग सिर्फ खाने पीने से बच रहे हैं। They are just surviving. They are just surviving there. All of them are labor. All they make just to have enough food, just to eat. And these people are in Bangladesh. They are making so much money, living a lavish life, and also making so much money to send back to their families or their investment. They have many of them. They have running joint venture business in India and Bangladesh. So they are also making money from here, investing there, and also making money. Bangladesh में अभी तक जितनी चीज हुआ 71 से लेकर उससे पहले भी हुआ, ये स्टूडेंट ने पहले कदम उठाया। ये ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पहले कदम उठाया। प्रोफेसर से पहले, बाप से पहले, चाचा से पहले, सेक्रेटरी से पहले, मंत्री मिनिस्टर से पहले, सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान जो कहते थे पहले, ये स्टूडेंट ने पहले कदम उठाया। इसने आवाज उठाया, इसने आवाज बुलंद किया, इसने सड़क बंद किया, इसने एहतजाज किया, इसने मिटिल किया, इसने सब कुछ किया। 3-4 साल पहले हमारी सड़कों में 2 चीज होते थे। एक तो है रॉबरी, कोई गारंटी नहीं है पॉइंट A to B you will go there without being robbed. Second thing is that traffic jam is unprecedented. Sometime you will be stuck on the road. 15 minutes journey can be 5 hours. 5-hour journey could be two days or something like that. It was unprecedented and intolerable. Student, imagine, पुलिस ना आर्मी ना गवर्नमेंट ना मिनिस्टर किसी ने ये कदम नहीं उठाया। स्टूडेंट ने बोला हमको उधर जो एहतजाज चला था, what the slogan was निरापद सड़क, means we want safe roads, safe highways, and the student came out mass protest, and within a week from now the robbery and the traffic jam on the highways, not the in the city and not the local streets, highways robbery is reduced by almost by 95%. स्टूडेंट ने क्या किया? ये स्टूडेंट ने ये सब कुछ किया, इनिशिएटिव उन्होंने लिया। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं? उसका दिल ने, उसका दिमाग में काम करते हैं। ये जो पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रहा है, लड़के को, औरत को लेके जाकर नंगा कर रहा है। ये सिंध, मेरा बाप सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की स्टूडेंट ये क्या कर रहे हैं? ये सब सो रहे हैं, ये नशा करके क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते। ये तो मुस्तफा भाई, आपका गिला जो है वो हमारे पाकिस्तानी नौजवानों से है, बेसिकली स्टूडेंट से है कि आप इतने हाई नंबर में हो। मेरी जब इस प्रोग्राम से पहले मुस्तफा भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मुझे बताया कि जब जब बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था तो उस वक्त सबसे पहला जो इशू उठा वो लैंग्वेज का था। बंगाली चाहते थे कि बंगला को सरकारी जुबान करार दिया जाए। इशू को भी जो रेज करने वाले थे वो भी स्टूडेंट थे। 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी की एट्रोसिटीज और उनके जो बर्बरियत के खिलाफ खड़े होने वाले भी वो भी स्टूडेंट्स थे। ढाका यूनिवर्सिटी का नाम हमने खुद पढ़ा हुआ है। और इसी तरह इन्होंने जो तीसरा इशू अभी हाईलाइट किया है वो था सेफ रोड्स का। जो बंगाली लोग थे उनको रॉबरी उनको फेस करना पड़ता था और ट्रैफिक जैम और तरह के प्रॉब्लम्स, उसको लेके स्टूडेंट्स उठे। तालिब इल्म जो हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वो खड़े हुए और उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इसको चेंज किया जाए। एंड दे हैड टू चेंज। गवर्नमेंट हैड टू लिसन। एंड नाउ द रोड्स आर सेफ, 95% सेफ। और इसके बाद जो मौजूदा इशू है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स खड़े हुए, इसमें से एक स्टूडेंट जो मैंने अपने उसमें एक स्टूडेंट तो हम जिसने छाती पे गोली खाई। हाँ, उसने छाती पे गोली 2 चीज के लिए खाया। उसने बोला मैं भी बांग्लादेश हूँ। उसने हाथ बढ़ाया गोली खाने के लिए नहीं, हाथ बढ़ाया था उसने उसको
क्या कहते हैं गले उसको? लगाने गले लगाने के लिए तुम But he got a bullet. ही गॉट द बुलेट। वो गला नहीं लगा, उसको गला नहीं मिला, बुलेट मिला। Bullet तो उसने बोला आओ हम ये एक है, तुम भी एक है, हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन उसने एक साथ नहीं लड़ा। उसको अब ये जो है, मैं जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, दिस इशू गवर्नमेंट हैड टू लिसन एंड दे हैव एक्सेप्टेड द डिमांड्स। या उन्होंने मुतालबात जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, जिसके लिए वो सड़कों के ऊपर निकले, उनको वो मानना पड़े। Until 2 days, I do not have the authentic report. The government issued any circulation about it, but on confirmed report, that government already, because it was all together, it was government quota was almost 56%. सब मिला के ये जो फ्रीडम फाइटर है उसको सब मिला के वगैरह वगैरह सब मिला के ऑलमोस्ट 56%। वो अभी ओनली 7%। जो मुक्ति वाहिनी जो है, वो जो फ्रीडम फाइटर जो है उसको 5%, और जो उनका कोटा रिड्यूस करके जो जनरल पब्लिक है, हाँ। उसका कोटा। अच्छा, इसमें और एक चीज है, ये जो किया है, ये भी स्टूडेंट है, ये सभी स्टूडेंट है। काफी बंदे ऐसे हैं, उसने घर में बच्चे सो रहे थे, उसको बाप ने निकाल दिया, जाओ तुम लड़ो, और रास्ते में जाके अगर आज तुम बेटा को ने बेटी को भी सो रहा था, माँ ने बोला इसको ये तो लड़की है, क्या बोलते आज ये लड़की आज नहीं लड़ेगा तो कल कौन लड़ेगा, इसके घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए कौन लड़ेगा। So a lot of fathers that take their children out of the house. Some of the family that took their young children out on the street, saying that if we do not fight today, how I will defend. ये भी स्टूडेंट ने किया है, करके इसको लिया। अच्छा, although there is another reason why students were, because after graduating from university, the Bangladeshi student, they right in front of their eyes, they can see the Indians are getting good jobs in private sectors, especially in the garment, especially in the garments sector. A lot of Indians are coming and taking these jobs, while Bangladeshi students are coming out of the university just wandering around without any job. Sometimes they were just 6 or 7 years and without any job, and right in front of their eyes, Indians are enjoying high salary especially in our garments factory and our manufacturing assembling factory. These three factories in flourishing in Bangladesh. So इससे उनके अंदर frustration पैदा हुई कि भाई Indians हमारे हक को लेके जा रहे हैं. So that's why students actually उन्होंने retaliate किया इसके ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर अपना गुस्से का इजहार किया, सड़कों के ऊपर निकले और हुकूमत को सुनना पड़ा. तो मुस्तफा भाई, आप पाकिस्तान के हालात को भी जानते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान ने ट्रेन नहीं किया इस के लिए अवाम को, जो 80% ही गॉट सीट्स. सो बेसिकली मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान ने अवाम को इसलिए ट्रेन नहीं किया कि आप आओ और आपकी एहतजाज करो. बेसिकली ही जस्ट वांटेड देम टू वोट एंड दे डिड इट. ओके, हाँ, ये सही है. इमरान खान ने इसको लड़ाकू नहीं बनाया. इमरान खान के none of his supporters, he made them militant. We understand that. Why? Because Imran Khan, he's a visionary. लेकिन फिर भी 9 मई का इल्जाम लगा दिया गया. वो तो अरे भाई, ये आर्मी तो पागल हो गई. ये आसिम मुनीर, he is a mad psychopath. He lost his balls. He is now completely crazy. उसको पता नहीं है करे तो क्या करे. He doesn't know now what to do. He tried everything. He thought Imran Khan is like Nawaz Sharif. 2 दिन के बाद वो जेल में रोना शुरू कर देगा, उसका प्लेट गिर जाएगा, मैं ऑफिस में आएगा, ये जेल में आएगा, व्हील चेयर से हॉस्पिटल जाएगा. That's what he thought about Imran. But Imran Khan is not the same. Imran Khan, he built his entire life inch by inch. What his base the Pakistani Awam. Imran Khan is only one person. He gave everything. लेकिन आपकी सारी बातें ठीक है. मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जब आजम सवाती के ऊपर टॉर्चर किया गया, हाँ, नंगा किया गया, उसकी वीडियो आई, इमरान खान never said people to come out. That was the time when he should have said to the people to come out and उसके लिए एहतजाज करो. जब शहबाज गिल को उठाया गया, although शहबाज गिल खुद भी ये बात नहीं करता, मैं उसको सुनता हूँ, he never says about it, he is always. बट मेरा ये ज़ाती ख्याल है, उसको 2 भाई तो तभी गुम है भाई. जब इमरान खान का चीफ स्टाफ ऑफिसर, तो इमरान खान को चाहिए था कि उस वक्त एहतजाज, क्योंकि जमहूरियत के अंदर सिर्फ एहतजाज एक ऑप्शन है आपके पास. दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. अच्छा, मान लो इमरान खान ने उस वक्त लोगों को नहीं निकाला और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इमरान खान अंदर है और लोग नहीं निकल रहे.
अच्छा आपका बात मान लिया, इमरान खान ने किसी को नहीं बोला तुम एहतजाज करो, सड़क पे आओ, लेकिन ये जो बंदे बैठे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी आवाम, इसका दिमाग क्या फ्रीज हो गया? इसका दिमाग फ्रीज हो गया, वो क्यों नहीं निकलते? देखिए, जो निकले हैं उनके साथ अगर आपको पता चले कि उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, तो लोग डर जाते हैं। तो फिर होगा ये, तो फिर 76 साल से ये हो रहा है, तो फिर ठीक है, सो जाओ, मरते रहो और शिकायत करते रहो, शिकायत सुबह उठो शिकायत करो, फिर रोटी मोटी खा के फिर सो जाओ, सुबह उठ के फिर शिकायत करो। 76 ईयर्स तुमने ये शिकायत किया, और भी 76 ईयर शिकायत कर लो। People are scared. तो they are not up to that level के वो बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट हुआ, कितने बंदा मारा पाकिस्तान आर्मी ने? कितने बंदे मारा? 26,000 लेडी को उसने रेप किया बांग्लादेश में, फिर ये बांग्लादेश खामोश बैठा रहा? उसने लड़ा। किससे लड़ा? जिसके कोई डंडा चला, पत्थर फेंकना को उसको नहीं आता था, उसने they took the arms, they fought, they defeated one of the mighty army in the world. 93 crore Pakistani army surrendered in East Pakistan. तो जैसे कम है नहीं, अच्छा चलो वो कहते 30,000 है, 90,000। ये इंडिया से कंफर्म करना पड़ेगा कि कितना। 93,000 is recorded. If you go to the United Nations or the Oxfam, you will find the 93,000 state number. The point is I'm making. Pakistani people are complaining. लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तो आर्मी से मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। आर्मी से इमरान खान जब नवाज शरीफ, फजलू, जरदारी, इसने जितनी गंदी बात आर्मी की वजह से यूज किया, इमरान खान अभी तक एक लफ्ज आर्मी के खिलाफ बात किया है? इसीलिए तो लोग नहीं ना निकलते, अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं निकलना चाहते। इमरान खान कहते हैं आर्मी भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है। But what the Pakistani people are doing, see this Imran Khan, he sold his entire property he bought his apartment in London with his own money. He sold it, brought it back to Pakistan, donated to the Shah Khanam. On the other hand, look at the PML and Zardari. They're stealing, looting Pakistan, building their permanent home in London and Dubai. Pakistani people don't see it. Fazlur Rahman, how come he using in Pakistan, the business of religious business is one of the best business. Fazlur Rahman is one of the prime example. He used Islam just to make money. The guy is a multi-billionaire. So Pakistani people, Imran Khan is not asking them to be militant. To be militant is never it's never that's not an option. Yeah. No, it's not an option. But you get out. You get just out. Come out on the street. Yeah, come out on the street. Just sit down and say don't break anything. लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो फिर भी उनको वो अपने बंदे खुद बीच में डाल के, अभी बन्नू में क्या हुआ आपने देखा ना? कितना बंदा लेगा? सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि एक अमन के लिए निकली हुई रैली जो बन्नू में थी, उसके ऊपर फायरिंग किया, अपनी तरफ से खुद बंदे डाल देते हैं, फिर उसका क्या करें? 9 मई में फॉर एग्जांपल 9 मई वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसीलिए उसकी अदालती तहकीकात पीटीआई का मुतालबा वो नहीं करवाते। लेकिन इसी तरह से वो काम करते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट निकलेगी उसके अंदर अपने बंदे डाल के शूट करवाएंगे और फिर उधर से बंदे मार के। ये जो 9th मई का जो the 9th May incident, now the PTI is asking the army. लेकिन आप देखें, आपका टोटल अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपका पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी लोगों को एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। देखें फर्क सिर्फ ये है कि बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट या हुकूमत पॉलिटिशियंस के पास है, लोग निकलते हैं, दे रिस्पॉन्ड वेदर दे जो उनकी हुकूमत गुड है या बैड है, बैक्ड अप बाय हूएवर। देखें लेकिन यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है वो पपेट है किसकी? आर्मी की। अब बेसिकली अगर लोग निकलेंगे तो उनसे हुकूमत नहीं डील करेगी, उनसे आर्मी डील करेगी, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स्ट देन व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। 200 लोग तो आपके भी मर गए ना। गवर्नमेंट रॉयटर कह रहे हैं 200, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ओवर 500 पीपल, बट द 500 वहां पे। लेट मी टेल यू, अगर पाकिस्तान में इस तरह का होता है कोई सीन तो शहादतें लोगों की ज्यादा होंगी। अच्छा ठीक है, मान लिया आप इधर 18 करोड़ है, पाकिस्तान में 25 करोड़ है। देखें ये बांग्लादेश, डू यू थिंक दिस इज द लास्ट टाइम एवर हैपन दिस काइंड ऑफ
missile, this kind of ehtijaj, this kind of sitting, this kind of jamming the street. Is it the last time happen? No, it will happen again. Bangladeshi people, Bangladeshi students. लेकिन आपका again जो will- इलेक्शन चुराया गया उसके ऊपर स्टूडेंट क्यों नहीं बोला? they did. Still लेकिन not- उसके ऊपर उनको कोई ना कोई मुतालबा माना गया? इलेक्शन चुरा लिया जीना वाजिद ने। it was. I don't know much about. There's another. लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि election was another. robbed. It was botched election. There Yeah. was no election. It was So, literally. इसके ऊपर it- भी it आप was- अपने स्टूडेंट्स को कहें कि इसके ऊपर देखें, हाँ, पाकिस्तानी कौम को आप जैसे भी कह लें कि कॉवर्ड हैं, जैसे भी हैं, लेकिन जो काम उन्होंने, जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेट कर दी ना इन इलेक्शन, दैट इज उसको पूरी दुनिया अब मानती है और उसके ऊपर स्टडीज कर रही है कि हाउ इट वाज अ बॉटम अप approach Where? in Pakistan in the last election. Yes. It was a bottom-up approach that even the illiterate people who don't know who cannot read and write, उन लोगों ने भी सिंबल पता करके ऊपर जाकर मोहर लगाई और इस वक्त वो गले की हड्डी बने हुए हैं। दो चीज है, एक ये बांग्लादेश में, अच्छा पाकिस्तान की बात करना, बांग्लादेश की बात करना, बांग्लादेश में मैं तो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन अच्छा इधर ये शुरू होने वाला है, ये आ रहे हैं, ये सामने ये लाभा पक रहे हैं। हमारी जो अपना बांग्लादेश में हमारी जो अपना जो शहर है मेरा, it's almost like about close to 1 crore people in the city, and the situation is really almost explosive. This ये election जो है, ये next election में हो सकता है government will try, but it's not going to happen because the student now that this is the time the student will now start fighting for this one. What the student in Bangladesh is, what a student jam the system that really choke the entire nation. Country will come to stand still. It's scorching halt. So government before had to listen. Government had to listen. No choice. Because No choice. entire economy, entire system, the student will choke. Choke कर दिया। In Pakistan, why the bottom? Because there is this is not a regular thing. This is the exception thing. Exception. Who is the exception? What is the exception? Exception is Imran Khan. Pakistani people now learn ये बंदा चोर नहीं है, ये बंदा बेईमान नहीं है, ये बंदा झूठ नहीं है. People believe that. That's why they voted him. So now आप चाहते हैं कि वो निकल आए? no choice, because okay, every country has a nation. Understand this one. One of the American journalists said, every country, every nation has an army. In Pakistan has an army. Sorry, Pakistan army has a nation. Army is a country. So army is now, these people are running the entire economy, entire smuggling and everything. Smuggling is in the entire control of the inland. देखें, हम तो अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, तो हम आर्मी से आपको क्यों नहीं इजाजत नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे ये सारी बातें करने की। लेकिन मैं अगर आपको टाइम ज्यादा हो रहा है, इसको कंक्लूड कर लें। Okay. ठीक है, because we wanted to keep it to half an hour. Okay. Last thing you want to say? Last thing, I wish, and this is my request, and this is also I like to think, in the entire Bar Saghir, in the entire continent, we have now only one person. It's not a group. It's not one person who is doing the jihad in jail, sacrificing his life for Pakistan, sacrificing his entire. He's 72 years old guy, dying in a 7x12 feet cell. He is dying for the people of Pakistan. How on earth the Pakistani people have their dinner and go to sleep in the morning, wake up again to complain? What's wrong with this Pakistani student? Do they become dumb? Do they become deaf? Do they become blind? Don't they have their brain? No, sorry. Okay. Let me interrupt you here. Sorry. आप फिर इमरान खान की मोहब्बत में आप वो इतना सारा कुछ कह रहे हैं। देखिए, ग्रेजुअली पाकिस्तानी नेशन विल हैव टू स्टैंड अप। पहले क्या हुआ, पाकिस्तानी नेशन ने वोट किया, उस वोट के नतीजे में 80% जो इमरान खान को वोट मिला, 47 फॉर्म 47 से उसको फॉर्म 47 से भले ऐसा हो गया हो, लेकिन उस चीज से जो हमारी जो जुडिशरी है वो स्टैंड अप हुई। जुडिशरी ने जो अब स्टैंड लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अदर फैक्टर्स इन। अब इस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो आप कह लें जो चोर गवर्नमेंट है, चोर हुकूमत है, उसके लिए अब जगह बहुत कम हो गई है।
और अगर ये इस मौके के ऊपर जब जुडिशरी ने स्टैंड ले लिया है, अगर ये इसको समझेंगे नहीं तो लावा यहाँ पे भी पक रहा है। अच्छा, लावा यहाँ पे भी पक रहा है एंड अल्टीमेटली थिंग्स विल गो इन दैट डायरेक्शन विच यू आर सेइंग कि लोगों को एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा। पीपल आर वेटिंग। ये वाली ऑप्शन भी जब खत्म हो जाएगी, अदलिया की ऑप्शन भी जब खत्म हो जाएगी, पीपल विल हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम ऑन द रोड्स। दैट्स माय पॉइंट। सो बेसिकली द आइडिया नाजरीन इस प्रोग्राम को करने का ये था ताकि आपको इंसाइट मिले बांग्लादेश की कि वहाँ पर क्या हुआ। मुस्तफ़ा भाई ने जो चीज़ें बताई हैं, लेट मी रैप इट अप सो दैट यू नो वी हैव अ रीज़न कि ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, जैसे औरिया मकबूल जान है, मोहित पीरज़ादा है, इमरान रियाज खान है, उन सब ने जो बातें की उनमें से कुछ बातें मिसिंग थी, जिस वजह से मैंने मुस्तफ़ा भाई को एंगेज किया और इनके साथ प्रोग्राम करना चाहा। क्योंकि मुझे डिस्कशन में ये पॉइंट मिले थे। वो पॉइंट क्या है? नंबर 1 कि सिर्फ बंगाली जो है वो इंडिया नहीं जा रहे, बल्कि इंडियंस भी बांग्लादेश में आके काम करें। नंबर 1। नंबर 2, दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। जो बंगाली इंडिया में जा रहे हैं वो दे आर जस्ट सर्वाइविंग, वो सिर्फ अपना उससे गुजारा करते हैं। लेकिन जो ल्यूक्रेटिव जॉब, जो अच्छी और हाई एंड जॉब्स हैं, इंडियंस बांग्लादेश के अंदर आकर वो जॉब्स कर रहे हैं और जिसके नतीजे में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि इंडिया की रिमिटेंसेस में जो सेकंड नंबर है वो बांग्लादेश का आता है, जो रेवेन्यू जा रहा है इंडिया को। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया वो ये कि इस सारी जो मौजूदा सूरत हाल पेश आई है उसके पीछे बंगाली स्टूडेंट्स हैं। बंगाली स्टूडेंट्स वो बहुत मुतहर्रिक हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो जो यूथ है बांग्लादेश की, दे आर वेरी एक्टिव। वो ऐसे नहीं है कि अगर कोई सिचुएशन पेश आती है कंट्री को, नेशन को, तो दे विल जस्ट सिट असाइड एंड दे विल जस्ट बी अ कीबोर्ड वॉरियर, बल्कि वो सड़कों के ऊपर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। और मुस्तफ़ा भाई का यही पॉइंट था कि पाकिस्तानी अवाम को भी इस तरह करना चाहिए, जिसको मैंने काउंटर किया थोड़ा सा। बेशक करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के बारे में, मैं होपफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी अवाम ने वो मोजज़ा करके दिखाया है, वो इनकलाब लेके आए हैं कि जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन चोरों से और चोरों के सहूलतकारों से अल्टीमेटली निजात दिलाएगा। क्योंकि अब अदलिया खड़ी हो गई है और अगर अदलिया के रास्ते को रोका गया तो फिर वही चीज होगी जो कि बांग्लादेश में है। हमारे जो यूथ है, व्हाट आई सी, दे आर जस्ट वेटिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू। जैसे बन्नू में हुआ, बन्नू में लाखों की तादाद में लोग निकले और दे आर वेटिंग पेशेंटली। दे डोंट वांट टू क्रिएट अ मैस इज नॉट गुड। hopefully not, inshallah. Yeah, inshallah. So that is what our hope is. We want peace everywhere. Yeah, Exactly. Yeah, we want Alhamdulillah. peace. Alhamdulillah. So brother मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश इमरान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, Yeah. बांग्लादेश जिंदाबाद। जिंदाबाद।